Okay, we are going to talk again plasmid structure and function. As we were talking in our previous class, plasmid, what is plasmid? कहाँ तक पढ़ चुके थे आप देखें नोटबुक में plasmid is extra chromosomal DNA, but it is small. This is the main difference that it is small. It is circular, as DNA, as nuclei of bacterium is circular. It is also circular. Similar, it have double-stranded DNA, not connected to bacterial organelles, ना सेल वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, ना साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, न किसी और ऑर्गेनल के साथ जुड़ा हुआ है. इट इज फ्री chromosome replicates independently. It have ability to replicate itself. Replicate means formation of a copy. Replica means a copy in science. It have ability to be replicate itself. May be gained or lost without harming bacteria because it is extra. Plasmid is extra. Either it have lost, either you will bacteria will gain from other thing. It have no harm to bacterial cell. चाहे ये बैक्टीरियल सेल से कहीं चला जाए या बैक्टीरियल सेल इसको एक्वायर करे, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता. लेकिन genes be transferred from one bacteria to another. लेकिन इसका सबसे बड़ा जो यूज है, इस्तेमाल है, horizontal transfer of specific genes we can do. प्लाज्मिड हम एक बैक्टीरिया से उठाकर दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे से तीसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पर उस प्लाज्मिड को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. इस बात को मैं समझना. प्लाज्मिड एक्स्ट्रा एक छोटा सा डीएनए है बैक्टीरियल सेल के अंदर. इट इज द एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म. It can be transferred from one bacteria to another. So genes which are present in this plasmid can be transferred from one bacteria to another. If there are some properties in this small DNA can be transferred into another bacterial cell. Suppose can be transferred from one bacteria to other. तो जो प्रॉपर्टी सपोज वो प्लाज्मिड दैट है वो स्पेसिफिक एबिलिटी, हम इस चीज पर बात करना चाह रहे हैं. अगर उसके अंदर कोई खास एबिलिटी है, मींस दैट कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंड यूजफुल एंजाइम which is very important and which is very useful for the human, for patients or for anyone. So that can be transferred from unknown bacteria to normal bacteria. सपोज इंसुलिन की इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, शुगर बड़ी उम्र के या शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की जरूरत होती है. इंसुलिन हमारे पेंक्रियाज प्रोड्यूस कर लेते हैं. सपोज यही जीन अगर हम प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं और वो प्लाज्मिड अगर हम इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नॉर्मल फ्लोरा है, वो इंसुलिन की डिफिशिएंसी खत्म हो गई. बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस देयर and it will work itself. So this is the main function and main benefit of this small plasma. It have 5 to 100 genes, carry genes. इसमें 5 से लेकर 100 तक जीन जो मौजूद हो सकते हैं. जीन a small fragment of DNA which can function specifically, which can control any individual property. So suppose antibiotic resistance, tolerance to toxic metals, production of toxins and synthesis of enzymes, these can be done. ये प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं. कन्जुगेशन के थ्रू नेचुरली भी ट्रांसफर हो सकता है पाइलिंग की मदद से, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू another bacterial cell, and we can get the benefit of
genes which are present on it. अगर वो हार्मफुल है तो ठीक है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं. If that is useful, we can take any benefit from this plasma. Okay, now we are going for the nuclear material. Nuclear material is mostly present in center of the cytoplasm. Nuclear material, bacterial cell का bacteria का जो nuclear material है mostly it is present in central region of the bacteria. But most important thing, it has no nuclear membrane. इसके गिर्द कोई membrane नहीं होती है. It is present just like an open space in cytoplasm. Cytoplasm में जैसे एक खाली कोई धागा अगर हम ऊपर से गिराते हैं तो वो किस हिसाब से बैठ जाता है, उस हिसाब से cytoplasmic region में मौजूद है. It has no membrane. Absence of nuclei hence known as nucleic material. अगर ये न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हम दूसरा नाम देते हैं न्यूक्लिक मटेरियल और न्यूक्लियाई. वन टू फ्यू पर बैक्टीरियम, एक भी हो सकता है और प्लाज्मिड मिलकर एक दो भी हो सकते हैं. वन टू फ्यू पर बैक्टीरियम ये न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है. इसके ऊपर आप लोगों ने पूरी जितनी भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स है या जितनी भी जेनेटिक्स है, वो सब के सब इस न्यूक्लियर मटेरियल पर बात करती है, इसी को एक्सप्लेन करती है, इसी के ऊपर डिबेट करती है, इसी के स्ट्रक्चर पर बात करती है. तो हम इसके ऊपर यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे. हमने इब्तिदा में जो इनिशियल जरा सी बात की है, जस्ट वी हैव टॉक्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंडिविजुअल. किसी भी जानदार चीज की जो खुसूसियात हैं उसको जो कंजर्व करता है, जो मेंटेन रखता है, उसकी जिम्मेदारी न्यूक्लियाई पर है, उसके डीएनए पर मौजूद है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को, खुसूसियात को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करता है. और ये जब से ये जानदार मौजूद है, उस यही चीज रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंसान आज तक इंसान है और दूसरे जानदार उसी अपनी शक्ल में मेंटेन है. सो वी हैव टू टॉक नाउ राइबोसोम्स. राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम का जो क्लियर स्ट्रक्चर है वो ये है. इट इज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक रीजन एंड दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन. क्या करते हैं? दे आर मेकिंग प्रोटीन. वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के लिए चाहिए, वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के लिए चाहिए, जो मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के आउटर स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, जितनी वो एंजाइम जो उन्होंने सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं साइटोप्लाज्म में, वो सारी प्रोटीन यहाँ से बनती हैं. और एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मटेरियल को डिकम्पोज या डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए, दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम. कंपोज ऑफ टू सब यूनिट्स. इसमें दो सब यूनिट्स हैं, मेड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए. इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक इसका प्रोटीन पार्ट है और दूसरा इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए का फ्रेगमेंट मौजूद होता है. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s and eukaryotic ribosomes are 80s. So 18S means Schoenberg unit, which is going to be settled down. और ये किस तरह मौजूद है? इट इज स्मॉल सब यूनिट विच इज 30S and bigger sub unit that is larger sub unit that is 50S. When these are going to be combined complete, they are forming 70S ribosome. In eukaryotes, these are forming 80S. It means they are going to settle down. जितना यूनिट दरकार है उसी हिसाब से इसका यूनिट मेंशन किया गया है. ठीक है.
Erythromycin and chloramphenicol अटैक टू 50S सब यूनिट्स। अब कुछ एंटीबायोटिक्स हमने सेल वॉल के लिए बनाई थी, उसमें एक ग्रुप था जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करके बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर रहा था, और यहां पर एक ग्रुप और है एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोराम्फेनिकोल अटैक टू द 50S सब यूनिट। क्यों इसको टारगेट क्यों किया गया है? बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट, क्योंकि उसमें एटीएस है। एटीएस सिर्फ उसके स्ट्रक्चर की वजह से, एटीएस सिर्फ उसके थोड़े से स्ट्रक्चर की वजह से वो एटीएस बन रहा है, नहीं तो वेट दोनों का सेम है, 50S 30S वही है। हालांकि इसको एटीएस बनना चाहिए था, लेकिन अपने उस यूनिट की वजह से ये सेटल डाउन जल्दी हो रहा है, छोटा है, तो इसलिए इसको 70S का है। दैट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम मोर टू सेटल डाउन, तो उसकी वजह से उसको एटीएस स्यूमबर्ग यूनिट में उसको कैलकुलेट किया। तो देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ 50S इज डिफरेंट कंपेयर टू तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन अटैच टू 30S, और दूसरे दो एक ग्रुप हैं दैट इज आल्सो हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन अटैच टू 30S सब यूनिट एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। जब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस when it will be stopped, it means bacteria is unable to carry its normal function। दो साइट ऑफ टारगेट कौन सी थी? आपके पास सेल वॉल था, एक ग्रुप सेल मेम्ब्रेन का था, एक वो इतनी ज्यादा जो है प्रिस्क्राइब नहीं करते, और तीसरा जो टारगेट साइट है दैट इज राइबोसोम which have structural difference from prokaryotic cells। 50S ribosome have structural difference from eukaryotic cells, therefore antibiotics is made for erythromycin chlorphenicol, they will bind with 50S subunit and stop its function, उसके काम को रोक देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन जिसको थर्ड जनरेशन के will bind to the 30S subunit and inhibit protein synthesis। Bacterial cells can be killed by antibiotics while eukaryotic cells remain unaffected. Why? Because the structure of 30S and 50S are different compared to eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोमल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है कंपेयर टू बैक्टीरियल राइबोसोम। इस चीज को याद रखिएगा, ये मुश्किल तो नहीं है, इसको लिख लिया आप लोगों ने? हमारा लिखो राइबोसोम इज साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। In eukaryotes, it is 80S. In prokaryotes, it is 70S. It have two subunits, 30S and 50S, plus RNA. So they have responsibility to make the all proteins which are required, which are essential for bacterial cells. They have responsibility to make all required proteins for bacterial cells. So bacterial growth or bacterial cells can be killed by applying antibiotics which can attack, which can bind with 50S and 30S and can stop its function to form the protein। एक कलम इसका ऐसे कर देना है। प्लाज्मिड नहीं कर सकेगा, प्लाज्मिड का काम ये नहीं है। प्लाज्मिड मैसेंजर आरएनए बना सकेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक चंद चीज है 5 से 10 उनकी चीजें तो पूरी होंगी, लेकिन बाकी जो हजारों के हिसाब से प्रोटीन से रिक्वायर होती हैं उस सब की चीज प्लाज्मिड में
फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो अलग से बचत में वो नॉर्मल पार्ट नहीं। बाद बैक्टीरिया में हर एक में नहीं, बाद बैक्टीरिया में एक इजाफी छोटा सा डीएनए मौजूद है जो कुछ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, वो खुद रेप्लिकेट हो सकता है। सेल वॉल का जिक्र नहीं है क्योंकि कुछ बाद बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल है या जिनमें सेल वॉल कम है या जिसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर जो साइड थी एंटीबायोटिक के अटैक के लिए वो बैक्टीरिया ने चेंज कर म्यूटेशन हो गई, उसमें रेजिस्टेंट हो गया। तो एक टारगेट पैट इन लोगों को ये भी मिल रही कि यार इसके अंदर जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है, राइबोसोम। लिहाजा को ऐसी दवाई बना जो राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाए, इस वाले के साथ बाइंड हो जाएगी, यूकैरियोटिक वाले के साथ बाइंड ना हो जाए। यूकैरियोटिक वाले के साथ बाइंड हो गए तो इसका मतलब हम यूकैरियोटिक है ना, हमारे अगर 15 एस और 30 एस के साथ बाइंड हो जाए तो जो प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड है वो इसका होता है, तो भी बदलना। लेकिन इसका 70 एस से हमारा कितना 80 एस, हमारे वाले के साथ उसने नहीं बनाया कि इसके साथ ये बाइंड हो जाए। 70 जो बैक्टीरिया था उसके साथ बाइंड हो जाए, ये एक डिफरेंशियल साइट हो गई जिसके साथ एंटीबायोटिक बाइंड होकर उसकी फंक्शन को रोक दे और फंक्शन को बैक्टीरिया को बिल्कुल साइट वो सारे जो डिफरेंस है वो आगे कर सकते हैं। अगर सपोज कोई डिफरेंस आपको इसके डीएनए में भी मिल जाता है, आप उसको भी डालेंगे यानी यूकैरियोटिक के डिफरेंस की साइड में हम इसके ऊपर आगे कर सकते हैं। अभी तक जो डिफरेंस निकले फ्रेंड सेल वॉल राइबोसोम, लेकिन सबसे पहले जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, सेल वॉल के मुताबिक ज्यादा पता था तो सारी एंटीबायोटिक के लिए बना सेल वॉल के लिए, उसके बाद आधा पता चला यार ये भी यहाँ पर भी आ ये थर्ड जनरेशन जो ग्रुप में जो वहां के ठीक हो गया। वो फॉर नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडीज, जिसे आप ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। सेवरल काइंड ऑफ रिजर्व फॉस्फेट डिपॉजिट्स, several kind of reserve deposits within the cytoplasm are present. Several kind of reserve deposits within the cytoplasm are present, are called inclusion bodies or granules. Inclusion bodies are granules. उनका फंक्शन क्या है? Bacterial cells may accumulate nutrients when they are plentiful. जब खुराक ज्यादा मिकदार में है, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिकदार में है, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इन ग्रेन्यूल्स में स्टोर करते हैं। यूज देम व्हेन द न्यूट्रिएंट इज डिफिशिएंट। जब सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं जो ग्रेन्यूल्स में डिपॉजिट की फॉर्म में मौजूद हैं। Cells may accumulate certain nutrients when they are plentiful, when they are more, when they are excess, and use them when the nutrient is deficient in environment. जब सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो उन्होंने क्या करना है, जिस तरह हम अगर खुराक बंद करते हैं तो हम एनर्जी के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? अगर हमने खुराक बाहर से लेना बंद कर दिया, हमारा जिस्म जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? जो स्टोर हमारे पास चर्बी की शक्ल में है, ग्लूकोज की शक्ल में है, ग्लाइकोजन की शक्ल में है, उसको इस्तेमाल करेगा। तो सिमिलरली बैक्टीरियल सेल्स हैव ग्रेन्यूल्स where they store their इजाफी फूड।
where they can store their plentiful food, plentiful nutrients. जो इजाफी न्यूट्रिएंट जैसे वो वहां पर जमा कर लेते हैं. When they require, there is nothing available at surrounding, so they will use that energy. The number depends on bacterial species. कितने होंगे? We don't know. It depends on every bacterial strain. किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं. और on the basis of granules, we can identify them. We can identify bacteria on the basis of granules. Or whenever you will stain the granule staining, you will find like this. Granules या inclusion bodies को जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आपको किस तरह नजर आएंगे? On the basis of these granules, we can identify that this is this and this is that. Reserve deposits, and therefore these are called metachromatic granules. Metachromatic granules, sometimes these granules have color, pigmentation. किस तरह के granules हो सकते हैं? Metachromatic granules हो सकते हैं, which can produce, which have specific color. Polysaccharide granules may be, which are made up of carbohydrates. Lipid granules, which have ability to store the lipid material. Sulfur granules, which have energy in form of deposition, energy reservoirs. Carboxysomes, enzymes which are used for the photosynthetic purpose. And gas vacuoles. And magnetosomes, some granules are present which are working as magnet. तो ये ग्रेन्यूल्स, ये सारी वो कायनात है जो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्मिक रीजन में मौजूद है और उनके ये काम हैं. मुख्तलिफ किस्म के ग्रेन्यूल्स हैं, उसमें कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को, कुछ लिपिड को, कुछ के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, कुछ बिल्कुल खाली होते हैं जिनको आप गैस वैक्यूल्स होते हैं, और कुछ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिनको आप मैग्नेटोसोम कहते हैं. दिस टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. ये लिख दिया, इसको लिख लें. डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स, कोई भी नाम आपसे पूछ सकते हैं, या ये भी कह सकता है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म. दूसरा ये भी पूछ सकता है फंक्शन ऑफ द सम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आर इंक्लूजन बॉडीज. व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज? So these can be different questions because these are in the cytoplasmic region of bacterial cell. हाँ, एक मिनट आ गया. Function have magnetic property. They will be attracted towards any magnetic material. Metachromatic granules, these are large inclusion bodies, sometimes stained red with blue dye, have diagnostic significance, store inorganic phosphate, जैसे क्रोनिबैक्टीरियम. मेटाक्रोमेटिक जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लार्ज इंक्लूजन बॉडीज हैं
and these can be dyed blue. जब इसको रंग देते हैं, कलर देते हैं, स्टेन करते हैं, तो these will be appear in blue color. Due to that we can identify, or क्योंकि वो एक डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं और स्टेन करने से उसको उसका कलर ब्लू नजर आ जाता है, तो हम उसकी बुनियाद पर उसको पहचान सकते हैं। एंड बेसिकली व्हाट दे स्टोर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी में ये मौजूद है, जो डिप्थेरिया कह सकते हैं उर्दू में, जिसको खन्नात की बीमारी कहते हैं। जरा आप लोग एक काम कर लेना, क्योंकि आप लोग आप लोग तो थोड़ी देर में क्लास के सारे हो जाओ, तो आपका वो जो लाइट आपने बनाना है फॉर्मेट कर दो, वो फॉर्मेट करके लेना, मैं बता तो पॉजिटिविटी वो करती है आगे मेरे पास आप लोग आप लोग हमारी बच्चे जो भी बच्चे होना उसको भेज देना। Okay, now we are going for the another characteristic, another thing which is present in bacterial cells, endospore. Endospore, it is the ability of bacterial cells. It is the ability of bacterial cells to encounter or to survive in extreme conditions. Endospore or spore, this is the ability of bacterial cells to survive in adverse conditions. To survive in adverse conditions. कोई भी मुश्किल किस्म की कैफियत आ गई बैक्टीरिया के ऊपर, तो बैक्टीरिया अपने आप को स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर में खुद को कन्वर्ट करता है, और उस रेस्टिंग स्ट्रक्चर में, उस रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में इट लिव्स अप टू दैट टाइम जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते हैं उसके लिए। वो बिल्कुल अपने आप को एक इनएनिमेट सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। That is called sporulation or spore formation. When there is any adverse condition, some bacterial cells have ability to convert themselves into a resistant structure until conditions are not favorable for them. That is called endospore or spore formation. This is resistant structure, and mostly किस चीज में मौजूद है ये? Clostridium, tetanus, which is cause gas gangrene, food poisoning and bacillus anthrax. इन तीन में ये चीज अभी पाई गई है। क्या करते हैं, जब भी हालात खराब हो गए अपने आप को स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और सर्वाइव करते हैं। इसकी वजह से क्लस्ट्रीडियम आपने देखा होगा, जब भी कहीं कोई जख्म लग जाता है जीव तो हम एक इसका टीका लगवा, उसकी रीजन क्या है? इस चीज से खौफ देता है कि अगर इसको कहीं अंदर चला गया और वहां ऊपर तो बोलता है बंद हो गया, अंदर वो क्या करता है, जैसे ही अपने आप को वहां उसको वहां चला गया और वहां न्यूट्रिएंट जिसको मिले एनारोबिक कंडीशन में वो ग्रो करना शुरू कर देता है और उसी
चीज बहुत खतरनाक है। ये टेटनस में होती है, गैस गैंग्रीन। और इसके अलावा जब फूड को हम प्रोसेस करते हैं और उसको सपोज हमने सही से पका कर स्ट्राई करके उसको पैक कर दिया और वहां पर अगर एक स्पोर चला गया और जैसे ही कंडीशन नॉर्मल हो गए वो वहां ग्रो करना शुरू कर देता है और पूरे फूड को स्पॉइल कर देता है। तो हम स्पोर की बात कर रहे हैं फिलहाल। इट इज रेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड दिस बैक्टीरिया है एबिलिटी टू फॉर्म द एंडोस्पोर, हाईली ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा अरसे तक ये अपने आप को मेंटेन रखता है। जहां पर भी जाए टेम्परेचर 100 तक चला जाए, वो 110 तक चला जाए, इसको कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर -300 तक चला जाए, हाईली ड्यूरेबल, डिहाइड्रेटेड सेल्स, देयर इज नो वाटर कंटेंट, कोई मॉइस्चर नहीं है, उसके अंदर ऐसी एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंडोस्पोर इज हाईली ड्यूरेबल, डिहाइड्रेटेड सेल्स विद thick walls and additional layers will form the internal to the bacteria cell membrane. एक ऐसी स्ट्रक्चर में एंडोस्पोर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हाईली ड्यूरेबल है, डिहाइड्रेटेड है, उसकी थिक सेल वॉल बनाता है अपने आप की, and additional layers will form the internal to the bacterial cell membrane. और उसके साथ इंटरनल और लेयर भी बना देता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही बन जाता है। अंदर सिर्फ अपने लिए न्यूक्लियर मटेरियल और चंद इंपॉर्टेंट चीजें अपने साथ रख देता है जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में मौजूद होती है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की फैक्ट्री में जो है ना सिर्फ चंद लोग सवार हो गए थे, बाकी सब इधर वो चंद लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन अपने साथ रखता है। एंडोस्पोर व्हेन रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट दे सर्वाइव। जब कंडीशन नॉर्मल हो गए अब वो दोबारा वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एनवायरनमेंट दे सर्वाइव, एक्सट्रीम हीट को सर्वाइव करते हैं, लैक ऑफ वाटर, पानी ना हो तब भी सर्वाइव करते हैं, एक्सपोजर टू मेनी टॉक्सिक केमिकल्स एंड रेडिएशन, किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का सामना हो जाए उसके लिए क्या करते हैं, स्पोर वहां पर सर्वाइव करते हैं। स्पोर क्या चीज है आप देख लीजिए। स्पोर इज रेस्टिंग स्ट्रक्चर, हाईली ड्यूरेबल, डिहाइड्रेटेड सेल with thick wall and additional layers which formed internal to the bacterial cell membrane. So, एंडोस्पोर when released into environment they survive. जब वो एंडोस्पोर environment में चला जाता है, जो भी adverse environment है, that can survive to extreme heat, that can survive to lack of water, that can survive when it will be exposed to toxic chemicals and radiation. किसी भी चीज से उसका सामना हो जाए वहां पर वो अपने आप को सर्वाइव करता है, वो वहां रह सकता है। और इस स्पोर फॉर्मेशन की एबिलिटी को जैसे ही बैक्टीरियल सेल को पता चल जाता है कि मेरे इर्द गिर्द हालत खराब हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कम है, पानी भी कम है, टॉक्सिक केमिकल भी है, अब बचने के चांसेस नहीं है, वो क्या करता है, उसका डीएनए जो है ना उस चीज को रियलाइज कर देता है और वो सारी मिशनरी एक्टिवेट कर देते हैं कि नाउ यू हैव टू फॉर्म स्पोर। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्पोरोलेशन या स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोलेशन या स्पोरोजेनेसिस, bacterial cell whenever realizes that conditions around me are adverse, so I have to convert into resting structure myself. So it is DNA, it is genes will function for this and they will start to form endospore. So the process is called sporulation or sporogenesis, formation of spores. Endospore forming bacteria, this occurs when nutrients, carbon, nitrogen source become unavailable or scarce. When nutrients are finished at surrounding, they will convert into spore form.
Germination, formation of vegetative cell from spore. When nutrients will be available, condition will be suitable, so again this spore will convert into vegetative bacterial cell. लोग नया सबसे लास्ट में है काफी आगे नहीं कहा इसमें कहा वो भी बात है ये लिखा स्पोरुलेशन SPORULATION स्पोरुलेशन उसके बाद इक्वल का निशान है और स्पोरोजेनेसिस SPOROGENESIS स्पोरोजेनेसिस एंडोस्पोर्स इस तरह के उसकी पोजीशन होती है समटाइम सेंट्रल होता है अगर स्पोर बैक्टीरियल सेल के सेंटर में है तो उसको हम सेंट्रल पोजीशन कहते हैं इसको सेंट्रल कहते हैं और यहां पर देखिए ये सब पोलर और अगर कोने पर मौजूद हो तो उसको हम पोलर पोजीशन कहते हैं और माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं तो उस तरह ऊपर नजर आते हैं कि स्पोर बैक्टीरियल सेल के अंदर स्पोर बन चुका है अगर स्पोर सेंटर में मौजूद है तो इट पोजीशन इज सेंट्रलाइज्ड अगर सेंटर से थोड़ा सा हट कर है तो उसको क्या कहते हैं सब पोलर और अगर बिल्कुल कॉर्नर में मौजूद हो तो उसको हम पोलर पोजीशन कहते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोग्राफ ऑफ एंडोस्पोर अपने आप को रेस्टिंग एट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो आउटर जो मेम्ब्रेन बना देता है या वो जो वॉल बना देता है दैट इज कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो कि यहाँ पर डिटेल से आएगा हाईली रिफ्रैक्टाइल बॉडी formed within vegetative bacterial cell in response to adverse environmental condition and due to deficient nutrient supply. इंडोस्पोर इस वक्त बनता है हाईली रिफ्रैक्टाइल बॉडी formed within vegetative bacterial cell जो जिंदा बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर ये बनता है in response to adverse environmental condition जैसे environment में condition abnormal हो गए अपने आप को इसने इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया एंड ड्यू टू डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई नाउन एज एंडोस्पोर क्यों कहते हैं एंडोस्पोर बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड तो बैक्टीरियल जो स्पोर है उसको हम क्या कहते हैं नाउन एज एंडोस्पोर क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड जेनेटिकली कंट्रोल्ड बैक्टीरियल डीएनए इसको कंट्रोल कर रहा है एंडोस्पोर्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जी नो इट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव metabolically inactive bacterial cells that are highly resistant to desiccation, heat, and various chemical agents. Desiccation means dryness. Endospore found in the cytoplasm of a rod-shaped spore-forming bacteria of the genus Bacillus
एंड क्लस्ट्रीडियम। अभी तक ये दो जेनरा में ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन एबिलिटी नजर आई, जिसके वजह से इसको जो है ना एज ए वॉरफेयर एजेंट दुनिया में इस्तेमाल करने का सबसे ज्यादा खौफ है। क्लस्ट्रीडियम तो नेचुरली ही खुद खतरनाक है, गैस गैंग्रीन बनाता है, और बैसिलस thuringiensis उसके अंदर मुख्तलिफ खतरनाक टाइप की जीन डालकर एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर दुनिया इस्तेमाल करने की चक्कर में लगी हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों ने अगर अखबार में या इसकी तरफ कहीं नजर लगी हो तो पता चला होगा कि कहीं एक एंथ्रेक्स का पाउडर बेच दिया उसने। वो इसलिए घबराते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं डाल दी हो कि वो पाउडर इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो और इनहेलेशन के थ्रू लोगों में चली जाए और सबको जो है ना मीठी नींद सुला दे। लिखिए ये क्या लेबोरेटरीज है इंडोस्पोर को। फिर माफी साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ का छोटा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा किसी सूरत में अपने अंदर स्टोर रखता है। अभी पता चल जाएगा जो एंडोस्पोर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर, अब इसमें पता चल जाएगा क्या क्या चीज रखी है। इट हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स। कौन कौन सा है? कोर वॉल, यहां देखिए इंडोस्पोर को ड्रा कीजिएगा, देखिए सबसे जो इनर है कोर वॉल, CORE, कोर वॉल सबसे इनर वाली होगी, ठीक हो। उसके ऊपर एक और का हो है जिसे कॉर्टेक्स का नाम दिया है इसने, कॉर्टेक्स, और स्पोर कोट उसने दिया है, और इसके अंदर फिर डीएनए और राइबोसोम जो है ना आम फॉर्म में, लेटेंट फॉर्म में मौजूद। कोरवा, कॉर्टेक्स, द कोट एंड एक्सोस्पोरियम, ये 4 चीजें इसके अंदर, इस स्पोर के अंदर बनती हैं। core wall, the innermost layer surrounding the inner spore membrane, इसके अंदर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। आप inner spore membrane, it contain normal peptidoglycan and become the cell wall of the germination vegetative cell। कोर वॉल इसको कहते हैं। हम पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सराउंडिंग द इनर स्पोर मेम्ब्रेन, इसके अंदर अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है, लेकिन पूरे मेम्ब्रेन को कवर इसने किया है कोर वॉल ने। और किस चीज का बना हुआ है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का। और जब नॉर्मल कंडीशन में ये दोबारा जब वेजिटेटिव सेल बनता है तो उस दौरान ये सेल वॉल बनने का काम सर अंजाम देता है। सेल वॉल बनाने का जिम्मेदार है ये कोर वॉल। तो कोर वॉल क्या है? सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो स्पोर के जो मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ, उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है चारों तरफ।
पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, और जब सेल वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाएगा। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसके बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। आप लिख लीजिए कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स इज द थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्पोर इन्वॉल्व। सबसे मोटी लेयर है उस स्पोर के ऊपर, स्पोर का जो वॉल है उसके ऊपर एक दूसरी कोटिंग है, एक दूसरी लेयर बन जाती है, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। दैट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्पोर इन्वॉल्व। It contain an unusual type of peptidoglycan. है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेकिन अनयूजुअल टाइप की है, नॉर्मल पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइसोजाइम। अब ये वाली जो लेयर है ये लाइसोजाइम से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। शायद नेचर ने इसलिए इसको लाइसोजाइम से सेंसिटिव रखा है कि कहीं ये इसको आंखों में चला जाए और म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाए और उस इंसान को नुकसान पहुंचा दे, तो उससे पहले लाइसोजाइम उसको ब्रेक करके उसको तोड़ दे, खत्म कर दे। Cortex peptidoglycan is extremely sensitive to lysozyme and it is autolysis play a role in spore germination। और एक दूसरा फंक्शन है ऑटोलाइसिस, खुद ब खुद इनकी जनरेट होती है। एक तो लाइसोजाइम से सेंसिटिव है और दूसरी ऑटोलाइसिस होती है। जब कंडीशन नॉर्मल हो गए उस वक्त ये खुद ब खुद जो है ना डिग्रेड हो जाएगी, ऑटोलाइसिस हो जाएगी और जर्मिनेशन होगी। उसके बाद कोट, जो कि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, शायद कोट कौन सी है? हाँ, कोट तीसरी लेयर है। इज कंपोज्ड ऑफ केराटिन लाइक प्रोटीन, केराटिनिन लाइक प्रोटीन। जैसे हमारे स्किन, ये नाखून और हेयर की जो प्रोटीन है उसकी तरह की एक प्रोटीन है, कंटेनिंग मेनी इंट्रामॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्योंकि ये डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट बनाते हैं। ये 3D टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के जिम्मेदार होते हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। द कोट इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनिन लाइक प्रोटीन containing many intramolecular disulfide bonds. The impermeability of this layer confers on spore their relative resistance to antibacterial chemical agents. ये केराटिनिन लाइक मटेरियल की है, इसके अंदर इम्परमिएबिलिटी, कोई भी चीज इसके अंदर डिफ्यूज होकर नहीं जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल स्पोर को एंटीबायोटिक से और केमिकल एजेंट से रेजिस्टेंट बनाती है। तब जाकर ये स्पोर किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के काबिल होता है। लास्ट वन, द एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम इज अ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, कंटेनिंग सम कार्बोहाइड्रेट, रफ सी बेहंगम सी एक चीज मौजूद होती है। जिस तरह हम अगर लेसन को देखते हैं तो बाकी चीजें अंदर, जो ओरिजिनल चीज है वो अंदर इंसेक्ट फॉर्म में पड़ी है और बाहर उसके इर्द गिर्द छिलके लगे हुए हैं। तो सेम इसी
तरह की स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। स्पोर स्ट्रक्चर ऑफ इंडोस्पोर कितने पार्ट में? 1 2 3 4। मोस्ट इनर स्ट्रक्चर इज कोर वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई। दूसरी है कॉर्टेक्स, जो कि अनयूजुअल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। तीसरा है कोट, जो कि केराटिनिन लाइक मटेरियल का बना हुआ है। और उन सब के ऊपर फिर एक जो स्पोरियम प्रोटीन टाइप की एक मेम्ब्रेन मौजूद है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। So this is the resistant structure of bacteria can survive in extreme conditions. So nature जहां बहुत ज्यादा बड़ी है, उसके इंसान का दिन कोई अहाता नहीं कर सकता है, इसी हिसाब से उसने इन बारीकियों को भी इसी हिसाब से ही संभाला है। क्योंकि इसके अंदर डीएनए की जो चीज बनाई है, न्यूक्लियोटाइड वही है। कौन कौन से? एडीजीसी 4 ब्लॉक, लेकिन वो तरतीब कहीं तब्दील कर देते हैं ऑर्डर के हिसाब से, जिसे कुन फयकुन का नाम है, तो वो चेंज होती है। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लॉक्स वही 4 है, अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, फंक्शन मुख्तलिफ है, इसमें कितना आगे जाकर आप पढ़ेंगे जब इसके ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, तो 800 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड के हिसाब से असेंबल होते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। देयर इज एनी मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री ऐसा है कि जो 800 के एक सेकेंड में बगैर किसी मिस्टेक के किसी दीवार में लगा सकते? नो, हियर स्पीक्स द नेचर। तब इंसान से उसका मुतालबा है कि आप गौर करो और नहीं बनाने वाला। ओके, वन वेजिटेटिव सेल कैन फॉर्म सिंगल एंडोस्पोर। अब ये एबिलिटी यहां पर आ जाती है, वन सेल ओनली कैन फॉर्म वन एंडोस्पोर। एक बैक्टीरियल सेल सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर बना सकता है, जिसे हम स्पोरेशन कहते हैं। और एक स्पोर सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल बना सकता है, जिसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो इस स्पोरिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें एक बैक्टीरियल सेल से एक स्पोर बनता है और एक स्पोर से एक बैक्टीरियल सेल बन सकता है, इसको हम रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दे सकते। इसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोटेक्शन, सर्वाइवल। स्पोरेलेशन, SPORULATI, एरो के अंदर जो है वो स्पोरेलेशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। सिंगल बैक्टीरियल सेल से सिंगल स्पोर बनेगा एंड प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरेलेशन। और एक स्पोर से एक बैक्टीरियल सेल बनेगा एंड प्रोसेस इज कॉल्ड germination. Therefore, we cannot say that this is the process of the reproduction, but we are saying it is a phenomena of protection in bacterial cells, which has been maintained in genera Bacillus and genera Clostridium for their survival. Endospores are clinically very important. मैं चाह रहा हूं बस ये चैप्टर आज खत्म कर दें हम लोग, इस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगा हम लोग। इंडोस्पोर आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। ये जो इंडोस्पोर बैक्टीरिया की जो एबिलिटी है कि वो अपने आप को, सपोज आप फूड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप ये फूड इंडस्ट्री है और आप चाह रहे हैं कि आप अपने फूड को पास्चराइज करके, डिस्ट्रॉय करके, सही से पैक करके आप उसको एक्सपोर्ट करें, लेकिन वहां ये स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया प्रॉब्लम रहता है। सपोज आपने उसको रेडिएशन दे दी, टेम्परेचर आपको क्लेव आपने कर दिया, स्टरलाइजेशन की, लेकिन स्पोर के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो रेजिस्टेंट है, वो वहां मौजूद है। आपने कोई भी प्रोसेस किया उससे वो मरता नहीं। आपने फूड को पैक किया,
आप मुतमईन हैं कि जी मैंने आपके फूड को सही तरीके से प्रोसेस किया है, लिहाजा मेरा फूड मटेरियल जो है मैं इसको जब मार्केट में बेचूंगी तो वो तकरीबन आप उसको एक्सपायरी नहीं देखती है कि 1 साल या 1.5 साल की इसके अंदर एक्सपायरी है, उस वक्त तक इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खौफ किस चीज का, स्कोर, अगर स्कोर मौजूद है, अगर बैक्टीरियल सेल ने उस वक्त अपने आप को स्कोर में कन्वर्ट कर दिया जब आपने उसको हीट ट्रीटमेंट दे दी, और एनवायरमेंट में जाकर जैसे ही मार्केट में जाकर लाए बढ़ते उधर टेम्परेचर में रखना या तो अपने शेल्फ में रखना है, उधर क्या होगा, कंडीशन नॉर्मल होगी, और कंडीशन जैसे ही नॉर्मल होंगे इससे कहने सर आप आ जाएं 10-15-20 मिनट के लिए, बस कहते मुझे 5 मिनट यहाँ के लिए चाहिए तो बिल्कुल क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। फूड इंडस्ट्री तो जैसे ही मार्केट में वो नॉर्मल कंडीशन में फूड रख देते हैं, वहां वो बैक्टीरिया जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट हो आपका माहौल अच्छा है और थोड़े जो माइल्सर है डब्बे के अंदर, ठीक है ना, वहां पर वो ग्रो करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेट हो जाता है, अपनी बहुत सारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ा देता है और सारे के सारे डब्बे वाले फूड का सत्यानाश होता है। Therefore, it is very important in industry because it is resistant to heat, resistant to freezing, resistant to desiccation. Use of chemicals and radiation is not affecting. Some bacteria produce, और उसमें क्या होता है, सपोज अगर बैक्टीरिया खुद ग्रो हुआ तो उसका इतना मसला नहीं था, लेकिन बाद बैक्टीरिया जो स्पोर में कन्वर्ट हुए हैं दोबारा जर्मिनेट हो गए नॉर्मल कंडीशन में फूड के अंदर ग्रो हुए, उस दौरान वो टॉक्सिक मटेरियल ग्रो, जिसको खाने के बाद अक्सर लोग कहीं सपोज पुराने चावल या शाम के रखे हुए चावल सुबह उसके से खा लिया तो वो जो उल्टी सीधी हो जाती है ना, कहीं उल्टी हो जाती है, कहीं लोटस फ्रेड हो जाती है, वो फूड पॉइजनिंग कहते हैं ना, क्योंकि चावल जब पकाए थे उस वक्त ये स्पोर में कन्वर्ट हो गया था, बाद में हमारी वजह से उसने बस खत्म कर रहे, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेक्स इस तरह का है जिसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर दुनिया इस्तेमाल कर रही है, घबरा रही है दुनिया कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसी जीन इंसेक्ट करके इसको पाउडर की शक्ल में बनाकर जो है ना वो डिसेमिनेट किया जाए दुनिया में और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तबाह हो। तो ये बैक्टीरियल स्पोर्स हैं जो जब आप स्कैनिंग करते हैं तो इस तरह नजर आते हैं, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट टर्म एग्जाम यहाँ तक हम जो भी हमारा असेसमेंट होगी नहीं यहाँ तक का नहीं, अभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस अगर ऐड हो जाती हैं फिर यहाँ तक रखेंगे। हाँ फाइनल के 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर ये हो गया ना, 2 चैप्टर और हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा हो जाए। थैंक यू। अटेंडेंस एक कागज में